Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम मैम। Today's our topic is shopping and ORM solutions. Okay. So first of all, we are introduction of online shopping. Online shopping or e-shopping is in a form of electronic commerce which allow the consumers to directly buy goods or services from a seller over the internet using on web browser. Alternative names are e-web store, e-shop, e-store, internet shop, web store, online storefront, and virtual store. These are the name of online stores. We can say online shops. Traditional shopping. What is traditional shopping? Traditional shopping is a term used to refer the way of doing shopping where you visit a store and buy goods. In traditional shopping, one has to leave home, either walk or take a ride to the store or shopping centers in order to buy what one wants. Traditional versus online shopping. One of the major difference between these ways of transaction is time saving. Convenience is also important feature. People can go shopping online whenever they want or can. But an advantage of shopping in traditional way is that the people can check out their goods with others on eyes and hands. Okay, that is the advantage of traditional shopping. Online store, you are able to browse and search for item as you would in a regular store. There is a wider range of a product sizes and colors of products as you would find in the warehouses. And most online store contain review of product by people who have already purchased and tried out the product. Clear just to see this picture. नजर आ रहा है? इस पिक्चर को थोड़ा मैं जूम करूं? आ रहा है मैम, नजर आ रहा है। आ रहा है? यस। ओके. Limitation of online shopping. There are a lot of limitation of online shopping. The very first is risky credit card purchase. It is a pretend to do online shopping from a reliable and trust web portal. A number of these web portals ask the payment through a credit or debit card. Second one is a never-ending wait for the product to arrive. You enter a shop, choose an items of your choice, pay the bills at the counter, and item is yours. After all of it, you walk into your house with dignity with your possessions in the hand. ठीक है. अब जाहिर की बात है, ये तो होगा ना ऑनलाइन शॉपिंग. अगर आप ट्रेडिशनल शॉपिंग करते हो तो आप जिस टाइम जाते हो बस क्या होता है, आपने प्रोडक्ट हाथ में ली, पसंद आया, बिल पे किया और पोजीशन उस प्रोडक्ट की आपके हाथ में. लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ये नहीं होता. उसमें ये होता है कि आप पे भी कर लेते हो, फिर क्या करते हैं आप अपने डिलीवरी सर्विसेज की जो है ना वेट करते हो. फिर कुछ लोग 3 दिन में कर लेते हैं, कुछ लोग 6 दिन लगाते हैं, कुछ लोग 10 दिन भी लगा देते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाती है बात. नो बार्गेनिंग. ऑनलाइन शॉपिंग पे आप लोग बार्गेनिंग नहीं कर सकते. जो वेबसाइट पे रेट लिखे हुए होते हैं आप उसी को सर्च करते हो और कार्ट में चली जाती हैं. हाँ, बस वहाँ पर ये होता है कि वो समटाइम्स सेल लगा देते हैं, फिर उसमें डिस्काउंट आपको होता है, लेकिन आप क्या है बार्गेनिंग नहीं कर सकते. लेकिन ट्रेडिशनल शॉपिंग में आप बार्गेनिंग कर सकते हो इजीली. Online shopping does not offer us that liberty of bargain and we are bound to buy the item in the quoted price. ठीक है. उसके बाद deceptive pictures, what may appear to have a matte texture in the picture may actually turn out to be quite glossy and shiny in reality. ठीक है.
ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो दिखाते कुछ और हैं, और जब हम आप पैकिंग खोलते हैं तो उसमें एक मटेरियल चेंज होता है, उसके कलर में कुछ फ़र्क होता है, उसकी शाइनिंग में कुछ फ़र्क होता है। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी क्या मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं उस चीज़ के, तो उस चीज़ के कलर हम ब्राइट करते हैं, लेकिन जब पैकिंग खोलते हैं तो उसके कलर थोड़े से लाइट डार्क आते हैं। आप देखेंगे कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वो बताती हैं, ऑलरेडी बताती हैं कि जो पिक्चर्स हैं, जो पोस्टर कलर्स हैं, उससे जो आपका ऑनलाइन मटेरियल है 25 to 20% उसमें कलर्स में चेंजिंग होगी, वो बता देते हैं। So lack of option in online shopping, you do not get the same item spread at the varied form and shape weighing from the attention. वही बात है, lack of option है। आपके पास जो वो आपको दिखाएंगे, आपको उसी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो मिला आपको। ठीक है, make you lazy with the advent of a new phenomena called online shopping. People who have an excess of inherent hardly show the inclination of the venture of their houses into the open. यहाँ पर एक ये बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग आपको लेजी कर देती है। वैसे क्या होता है जब आप ट्रेडिशनल शॉपिंग, क्योंकि हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ। ठीक है, तो जो है ऑनलाइन शॉपिंग क्या करती है, ये बोल रहा है कि आपको लेजी कर देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, बस आप घर में ही ऑर्डर कर देते हो। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए बाहर जाते हो तो उसमें उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। आप खुद जाते हो, बाकी सारी चीजें भी देखते हो, घर से बाहर निकलते हो, थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है इस तरीके से। डिप्राइव्स यू ऑफ टेंजिबिलिटी। जाहिर की बात है, आप ऑनलाइन चीजों को टच करके तो नहीं देख सकते ना, बस आपको वो जो दिखा रहे होते हैं आप वही चीजें देख रहे हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग मेक्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सचेंज आइटम एज वेल इन द केस ऑफ स्पेस। अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो एक्सचेंज करने में भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ट्रेडिशनल शॉपिंग में क्या होती है कि अगर साइज में, चीज में कोई फर्क आ जाता है तो आप क्या करते हो, जाके एक्सचेंज करवा के आते हो उस प्रोडक्ट को। साइज में, सारी चीजों में, टेंजिबल मार्केट में आप इजीली जाके बस चेंज करवा के वापस आ जाते हैं। इनका थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट है। कुछ लोग, कुछ वेबसाइट्स एक्सचेंज पॉलिसी देती हैं, कुछ वेबसाइट्स नहीं देती। किन किन के पास एक्सचेंज मनी बैक होती है, मनी बैक गारंटी के साथ वो देते हैं। कुछ आपको कहते हैं विद इन 15 डेज आप हमसे एक्सचेंज करवा सकते हो, कुछ किस तरीके से, लेकिन कुछ वेबसाइट ये ऑप्शंस नहीं देती। उसके बाद है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट इज मोस्ट कैसेस राइजेस देन द प्राइस इन आर्टिकल यू मे एंड अप बाइंग एट द रेट ऑफ हायर देन द मार्केट प्लेस। ठीक है, अब शिपिंग कॉस्ट जाहिर की बात है, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज आपको सस्ते में मिल भी रही है ऑनलाइन शॉपिंग से, ठीक है, ऑनलाइन पे वेबसाइट पे पड़ी हुई है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर आप उसको शिपिंग कॉस्ट मिला लो तो आपको वो क्या फिजिकली प्रोडक्ट्स जैसे आप ले रहे हो, जाके ट्रेडिशनल शॉपिंग कर रहे हो हम कहें, तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है कभी कभी। एक चीज़ है फॉर एग्जांपल 150 की और उसकी कॉस्ट, उसकी शिपिंग कॉस्ट है 300 रुपीज़, तो 150 वाली चीज़ आपको कितने में मिली, 450 में पड़ गई। ठीक है, इस तरीके से इस शिपिंग कॉस्ट का ये होता है। इंटरनेट डज नॉट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। वही बात है कि आपको इंटरनेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, आप उसके भी पे करते हो। Every time you open a page in online shipping portal to choose a specific item, you get charged for it. जितनी आप यूज करोगे वो अलग बात है, वो आप मंथ के एंड में बिल दे देते हो, लेकिन क्या है कि चार्जिंग तो लग रही होती है ना आपके पास। उसके बाद है ऑनलाइन सेफ्टी। द इंटरनेट इज अ ग्रेट रिसोर्स एंड कैन बी पावरफुल टूल फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, शॉपिंग एंड कम्युनिकेशन, बट जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन द लाइफ you need to be careful using it. There are some bad people who will try to steal your information online, but if you take the proper precautions, identity theft will be unlikely to happen to you. वो बोल रहा है ऑनलाइन सेफ्टी, जाहिर की बात है अब अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो यहाँ पर भी हैकर्स, इस तरीके के हैकर्स बैठे हुए होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डेटा, आपकी मनी चुराने के पर्पज से होते हैं। तो आप जितनी अपनी चीज़ों को सिक्योर रखोगे, उसकी जो प्रिकॉशन से प्रॉपर फॉलो करोगे, उतना ही अपने आप को बचा पाओगे धोखे से, फ्रॉड से या चोरी से।
Here are some way to protect yourself when online shopping. Check out the seller, conduct the independent research before you buy, and from a seller you have never done business with. Some attackers try to trick you by the creating surveillance websites that appear legitimate, so you should verify the site before supplying information. ठीक है, ये बोल रहा है कि अपने सेलर्स को चेकआउट करें कि वो जो उसकी रिसर्च करें कि उसने पहले बिजनेस किया है नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से भी आप लोगों को धोखा हो रहा होता है। फेक साइट्स जो होती हैं उनको आप वो भी बहुत सारी आ गई हैं, तो आप क्या करोगे, उसको वेरीफाई करोगे कि वो फेक तो नहीं है। Make sure the site legitimate before they enter your personal and financial information. To make an online transaction, look for signs that the site is secure or not. ठीक है, आप उसकी साइंस देखें। जाहिर की बात है, एक ऑथेंटिक वेबसाइट्स होगी तो उसका प्रॉपर वे होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज करने का। जो फेक होते हैं वो अलग से, उन पे उनकी जो साइंस है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू ट्रू वालों के। प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको हर जगह पे प्रोटेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तभी अपनी पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करें। बिफोर द प्रोवाइडिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चेक द वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसीज। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने से पहले आप चेक करें वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसीज को। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ योर इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड एंड यूज। आप उनसे पूछें, ये मेक श्योर करें इस बात को तो कि वो आपकी इंफॉर्मेशन कैसे और कहाँ स्टोर कर रहे हैं और कहाँ यूज कर रहे हैं। कीप अ पेपर ट्रायल, ठीक है, पेपर ट्रायल ले लें उनके। रीड योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स एज सून एज यू गेट देम टू मेक श्योर that are not any unauthorized charges. If there is discrepancy, call your bank and report immediately. अगर आपको फील हो रहा है कि वहां पर कुछ फेक है, कुछ गलत है, तो क्या करोगे, आप अपनी बैंक को फोन करोगे और उन ट्रांजैक्शंस को होने से रोकोगे। Use safe payment option. Credit card are generally the safest option because they allow the buyer to seek a credit from the issuer if the product is not delivered or is not what was ordered. ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि सबसे easiest और सेफेस्ट जो ऑप्शन है वो क्रेडिट कार्ड का है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड जो है सीक करता है किसको, क्रेडिट फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब तक क्रेडिट होता है वो इशू करते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो वो जब तक डिलीवर नहीं होता, जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं पहुंचा, तब तक उनकी चीज जो मनी है वो ट्रांसफर नहीं होती, या फिर उनको पकड़ना आसान होता है। टर्न योर कंप्यूटर ऑफ व्हेन यू आर फिनिश्ड शॉपिंग। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपना कंप्यूटर ऑफ कर ले जब आप अपनी शॉपिंग फिनिश कर दे। कंप्यूटर यहाँ वो वेब पेज होता है। Many people leave their computers running and connect to the internet all the day and night. This gives the scammers 24/7 access to your computer to install a malware and commit cyber crimes. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब आपका काम खत्म हो जाए ऑनलाइन शॉपिंग का तो अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑफ कर ले। अगर आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होते हैं, दैट मीन कि 24 आवर्स जितनी देर तक वो ऑन होंगे आपका इंटरनेट का एक्सेस होगा। फिर ये जो मेलवेयर है, ये ठीक है, ये वायरस है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था उससे प्रीवियस लेक्चर में टाइप ऑफ वायरसेस पढ़े थे, उसमें ये था। तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा मेलवेयर तो वो क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, वो साइबर क्राइम में चीज आ जाएगी। फिर जो है ना अगले को जाहिर की बड़े मौका मिल जाएगा ना, वो आपके कंप्यूटर पर अटैक करके आपका डेटा ले सकता है। उसके बाद आ जाता है ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो रेपुटेशन है मैनेजमेंट की उसके बारे में है ये। डू यू नो व्हाट द पीपल आर सेइंग अबाउट योर बिजनेस ऑनलाइन? क्या आप ये जानते हो कि लोग क्या कहते हैं आपके ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? What is online reputation management? Wikipedia definition of online reputation management is that online reputation management, या ORM, are a monitoring is the practices of monitoring the internet reputation of a person, brand, or a business with the goal of surprising negative mentions entirely, or pushing them lower on search engine result page and decrease their visibility.
ऑनलाइन रेपुटेशन आपकी जो होती है उस पर्सन की, उस ब्रांड की या उस बिजनेस की, वो होता है कि उनका जो गोल है, वो जो काम कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा रिव्यूज आते हैं किसके, कस्टमर्स के। वो जो ऑनलाइन, वो जो आपको रिव्यूज मिलते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो एक्चुअली वो बात होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या रिव्यूज दे रहे हैं। Did you know that 2011 social shopping study indicate that a 50% of consumers spend 75% or of more their total shopping time conducting online product research. 70% of consumer trust other consumer opinion that are posted online. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 70% कंज्यूमर्स जो है ट्रस्ट करते हैं किस पे, दूसरे कंज्यूमर्स के ओपिनियन पे। आप अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, इवन आजकल अगर हम कोई मूवी भी ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, देखो आप स्टार्स काउंट करते हो कि ये मूवी है तो इसके अगर इस पे 5 स्टार है या मोर देन 4 स्टार है तो ये अच्छी होगी, इसकी रेटिंग ज्यादा है तो हम इसको देखें। तो दीज इज यूर ORM, ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। वहां से आपको पता चलता है। तो प्रोडक्ट्स में भी आपके रिव्यूज होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब कोई उनको शॉपिंग करनी होती है, कोई प्रोडक्ट लेना होता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरों के कमेंट्स देखते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 70%, 100% में से 70% कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं दूसरों कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के ओपिनियन पे। क्यों? अब वो तो पता नहीं कि वो लोग सच्चे आपको ओपिनियन दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं या झूठे दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उन रिव्यूज को देख के उस तरह उस प्रोडक्ट की तरफ आगे जाते हैं। Why is online reputation management so important? Your prospects are online, your competitors are online, your customers are online. ठीक है, अब जाहिर की बात है, जब आपके ऑनलाइन, आपका प्रोस्पेक्टर भी ऑनलाइन है, आपका कॉम्पिटिटर्स भी ऑनलाइन है, आपके कस्टमर्स भी ऑनलाइन है, तो आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स योर अनहैप्पी कस्टमर। उसमें आपके अनहैप्पी कस्टमर्स भी आएंगे, वो कस्टमर्स भी आएंगे जिनको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे। The internet has changed everything. Before the internet, business controlled their messages via one-way communication channel. लेकिन that thanks to the internet, everyone control the message via blog, social media and customer reviews. ठीक है, अब बिफोर इंटरनेट तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती थी। पहले हम क्या करते, आजकल तो ऐसा है ना, भले आप चीज ट्रेडिशनल मार्केट से ही खरीदो, लेकिन उसी प्रोडक्ट को अगर आप, उसी कंपनी को, उसी ब्रांड को आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको वहां पर भी उसकी ORM पता चल जाएगी। तो क्या होगा, आप डिसीजन इजीली ले सकोगे, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट से आप जाकर लें या फिर ऑनलाइन मार्केट से लें। इंटरनेट हमारी इस बात में हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। थैंक्स टू इंटरनेट एवरीवन कंट्रोल द मैसेजेस विया ब्लॉग्स, सोशल मीडिया एंड कस्टमर रिव्यूज। ये जो यहाँ पर साइंस है, ट्विटर की, फेसबुक की, यूट्यूब की, विकीपीडिया की और इंसाइक्लोपीडिया की, ये जो सारी जो साइंस है यहाँ पर, ये आपको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। What are people saying about your business, your company online reputation? आपके फॉर्म्स कौन से हैं, या सोशल मीडिया पे किस किस जगह पे आप एक्टिव हैं, उसके बाद कस्टमर रिव्यूज को, फार्मर एम्प्लॉयज को और आपकी ब्लॉगर्स को। ये जो चीजें हैं, ये बिजनेस, व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट योर बिजनेस, यहाँ से आपको पता चलता है। ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन इज इवन क्रिटिकल फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो चीजें अंडरलाइन की गई हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ये वेलमार्ट स्टक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन दिस साइट एफिलिएटेड विथ, दिस साइट इज नॉट एफिलिएटेड विथ वेलमार्ट इन एनी वे। इन द केस यू आर ऑन ब्रेक, ही इट्स farmers then said that was the Walmart policy। ठीक है, अब ये बोल रहा है, यहाँ पर ही आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं। अब ये जो वेबसाइट यहाँ पर दिखा रही है फार्मिस्ट की, वेलमार्ट सक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो छोटे से यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह पे, तो ये बोल रहा है कि ये जो साइट है, ये सक्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन, ये एफिलेटेड नहीं है वेलमार्ट से। अगर आपको इस साइट पे कोई धोखा मिल रहा है तो दैट नॉट मीन कि आप जो है वेलमार्ट, आपको वेलमार्ट की तरफ से धोखा मिल रहा है।
इस तरीके से होते हैं काफी लोग जो होते हैं, वो आप लोगों का नाम यूज करके, कंपनीज का, बिजनेस का नाम यूज करके उनको क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। लेकिन वो है कि वो तभी होगा जब ऑथेंटिक वो जो चीज है, मतलब किसी अच्छी सी रेपुटेड कंपनी या रेपुटेड ब्रांड को लेके उसका जो है स्कैंडल बना दें या कोई चीज बना के उस कंपनी को बदनाम करें। दैट नॉट मीन कि वो कंपनी आपको धोखा दे रही है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अ बैड ऑनलाइन रेपुटेशन, ठीक है, वो कैसे होगी, आपके बैड कस्टमर एक्सपीरियंस से होगी, अनरिजॉल्व कस्टमर इश्यूज होगी, बैड रेपुटेशन होगी। तो इससे आप क्या करोगे, आपके लॉस किस पे होगा, आपका नुकसान किस चीज का होगा, आपके रिवेन्यू कम हो जाएंगे, ठीक है। कस्टमर्स का बुरा एक्सपीरियंस भी, वो भी आपके ORM पे डिपेंड, ORM पे इफेक्ट करेंगे। अनरिजॉल्व कस्टमर इश्यूज, अगर आप कस्टमर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाते तो वो भी आपके क्या होंगे, मैं इसमें ORM पे इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स में आएंगे। बैड रेपुटेशन बनेगी, जब आप उनकी सेटिस्फेक्शन आप उनको नहीं दे पाओगे, उनका एक्सपीरियंस बैड रहेगा, तो वो आपके रेपुटेशन, वो जो आपके रिव्यूज करेगी वो भी आपके नेगेटिव ही होंगे। तो उसमें आपके क्या होगी, आपका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपके रेवेन्यूज पे पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अ बेड ऑनलाइन रेपुटेशन कुड लॉस द एग्जिस्टिंग कस्टमर। जाहिर की बात है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो मूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो है इंटरनेट जो है वो बहुत वाइड एरिया है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह से स्विच करने में जस्ट सेकंड्स लगते हैं, जस्ट मिनट्स लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। डिफिकल्ट गेटिंग न्यू कस्टमर, फिर हमें न्यू कस्टमर्स, एक बार अगर रेपुटेशन खराब हो जाती है तो हमारे लिए डिफिकल्टी होती है न्यू कस्टमर्स को क्रिएट करने में। बिजनेस कैन सफर फाइनेंशियली लॉस, कस्टमर्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आप फाइनेंशियली लॉस की तरफ जाएंगे। Positive effects of a good online reputation. The retain existing customer, easier to get a new customer, maintain a positive brand image. फिर पॉजिटिव में ये होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वो आपको रिटेन करेंगे, ठीक है, आपसे बार बार चीजें खरीदेंगे, आपसे बार बार आपके शॉप से शॉपिंग करेंगे। easier to get new customer, अब उनके आपको रिव्यूज अच्छे होंगे तो न्यू कस्टमर्स आपके खुद ब खुद आते जाएंगे। उसके बाद मेंटेन पॉजिटिव ब्रांड इमेज, आप अपनी ब्रांड इमेज को भी पॉजिटिवली मेंटेन करते ही आओगे आगे चल के। आगे आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी ब्रांड इमेज मेंटेन होती जाएगी। हाउ टू मेंटेन योर रेपुटेशन, बी प्रोएक्टिव इनसाइड ऑफ रिएक्टिव, ठीक है, आपको प्रोएक्टिव रहना ही, रिएक्टिव नहीं रहना। मॉनिटर ऑनलाइन कन्वर्सेशन अबाउट योर बिजनेस, अपनी ऑनलाइन जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है अबाउट योर बिजनेस, नॉट अदर, आपके बिजनेस के बारे में जो कन्वर्सेशन चल रही हैं उसको आप देखें, उस पर नजर रखें, उनको मॉनिटर करें। रिस्पॉन्ड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर ऑनलाइन, आप रिस्पॉन्ड करें, इंटरेक्ट करें किसको, ऑनलाइन अपने कंज्यूमर्स के साथ। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव कंटेंट रेगुलरली, उनको आप पॉजिटिव कंटेंट रेगुलरली उनसे क्रिएट करते रहें, शेयर करते रहें चीजें, तो आपकी रेपुटेशन मेंटेन रहेगी। जाहिर की बात है, रेपुटेशन सिर्फ बनाना नहीं होता, उसको आगे जो है ना मेंटेन रखना भी बड़ी बात होती है। एक्टिव सीक रिव्यू, एक्टिव सीक रिव्यूज फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है, एक्टिव सीक रिव्यू आपको कौन देते हैं, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर देते हैं। बूस्ट कन्वर्जेशन होती है इससे। प्रोवाइड ए फीडबैक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कंज्यूमर ट्रस्ट होता है एंड एक्सपेक्ट ऑनलाइन रिव्यूज होते हैं, आपका कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट होता है वो ज्यादा होते हैं, आपके ऑनलाइन रिव्यूज जो है वो अच्छे आते हैं उससे। हाउ टू गेट कस्टमर रिव्यूज, ऑफर एन इनिशिएटिव इन एक्सचेंज फॉर रिव्यूज, कूपन, डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स, ठीक है। आप जो है ना, आपने देखा होगा कि काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कूपन्स भी देती हैं, कूपन्स आपको विन करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप शॉपिंग करोगे वहां से, तो ज्यादा शॉपिंग करोगे तो आपको कूपन पे करती है, जैसे आजकल
ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट है, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, फिर वो कूपन देते हैं। अगर आप इतनी हमारे से सेलिंग करोगे, सेलिंग नहीं, बाइंग करोगे, इतनी परचेजिंग करोगे, तो आपको 300 का या 400 का या 200 का कूपन मिल जाएगा। फिर वो आप कूपन कोड मिलेगा, फिर वो आप कोड पुट करोगे तो फिर आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा। सीधा सीधा डिस्काउंट भी देती हैं वेबसाइट्स, आपको कहती हैं 2 या 3 प्रोडक्ट आप परचेज करो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। फ्री सैंपल्स भी दे देते हैं। आपने देखते होंगे कि आजकल जो ब्लॉगर्स हैं उनके पास पीआर पैकेजेस आते हैं, तो वो क्या होते हैं, फ्री सैम्पलिंग होती है। फ्री सैंपल्स इसीलिए करते हैं कि अगर हम फ्री सैंपल करेंगे, इन ब्लॉगर्स के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, अगर इन्होंने हमारे पॉजिटिव रिव्यूज किए तो हमारे हमारे क्या बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे। ठीक है। और डिस्काउंट इन सेल के केस में भी आ जाता है। डिस्काउंट इस तरीके से भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने हमारे से 2000 तक की शॉपिंग की तो आपको हम क्या करेंगे, होम डिलीवरी फ्री दे देंगे, उसके चार्जेस नहीं लेंगे। इस तरीके से ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, थ्रू हर वेबसाइट की वो बता देते हैं, खुद ही देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, आस्क कस्टमर्स। ask a customers to review product by the placing a call and action to your product pages। ठीक है। अब रिव्यू प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे कॉल्स या एक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट पेजेस। जिस पेज पे आपका प्रोडक्ट होगा उसी चीज पे आप कस्टमर से पूछोगे, क्वेश्चंस पूछ लोगे, फिर उसके आंसर कस्टमर्स देंगे। फिर वो जिस तरीके से सेटिस्फाई होगा, जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा कस्टमर का, वो उस तरीके से जवाब देगा, आपको आंसर करेगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। सेंड कस्टमर्स टू योर बिजनेस लिस्टिंग ऑन गूगल प्लेसेस, यील्ड सिटी सर्चिंग एंड अदर्स। आप अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस की जो लिस्टिंग है, जो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, वो गूगल प्लेस कर दें, उसको लोग शेयर कर लें उनके साथ। सिटी सर्चिंग, भाई हमारे उसकी हेल्प कर दें। सिटी सर्चिंग जो हमारी होती है उसके बारे में बता दें कि इस सिटी में हमारी ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप इनको देख लें। लिंक योर बिजनेस लिस्टिंग प्रोफाइल योर वेबसाइट। आप अपना जो लिंक है बिजनेस लिस्टिंग का, वो अपने प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल पे रख दें, ताकि आपके कस्टमर्स को पता चले। आपने देखा होगा आजकल जो ऑनलाइन सेलिंग हो रही होती है, वहां पर जो लोग पेजेस पे लोग अपने कस्टमर्स के फीडबैक्स भी रखते हैं, उसके स्क्रीनशॉट निकाल के वो भी वहां पर मेंशन करते हैं, ताकि जो है हमारे जो बाकी न्यू कस्टमर्स आए उनको उन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखें, और उनकी जो प्रोडक्ट खरीदने की जो सोच है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। क्रिएट पॉजिटिव ब्रांडेड कंटेंट, फ्लोट द फ्लूट द फर्स्ट पेज ऑफ द सर्च इंजन विद द पॉजिटिव ब्रांड एंड कंटेंट। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे जा रहे हो, उस पे आपकी जो फर्स्ट पेज, जो आपका होम पेज आप बोल दें उसे, और सर्च इंजन है, उस पे आप अपनी ब्रांड की पॉजिटिविटी कंटेंट रखें। वेल रैंक्ड वेबसाइट, ऑन गोइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, आर्टिकल, वीडियोस, प्रेस रिलीजिंग फोटो, ये सारी चीजें रखें, ताकि आपका जो कस्टमर है उसकी माइंड में आपके ब्रांड के तरफ पॉजिटिव चीजें आए। टिप, टूल, हेल्प, ट्यूटोरियल्स एंड अदर यूजफुल कंटेंट रखें, ताकि कस्टमर आए तो उसकी मतलब एक खुश हो जाए, एक वर्ड्स में बोलेंगे, उसको हैप्पीली फील हो, आपके जो है इसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में वो सोचे, और मतलब पॉजिटिव वे में आपकी बाकी वेबसाइट जो है विजिट करें। उसके बाद है मॉनिटरिंग ऑनलाइन कन्वर्सेशन, फाइंड आउट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट योर बिजनेस, डू अ गूगल सर्च फॉर योर बिजनेस नेम, व्हाट कम्स अप। उसके बाद है चेक आर्टिकल्स, ब्लॉग, फॉर्म एंड कस्टमर रिव्यू साइट, फ्रिक्वेंटली चेक योर ऑन ब्लॉग वेबसाइट फॉर कमेंट्स। जाहिर की बात है, आपको अपने भी ब्लॉग्स पे को भी चेक करते रहेंगे, वेबसाइट पे कमेंट्स को देखते रहेंगे, तभी तो मतलब देखेंगे ना पॉजिटिव, मतलब मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटर करना है अपनी चीजों को, साथ साथ दूसरों को भी। पे क्लोज अटेंशन टू द सोशल नेटवर्क साइट, आपको अपना जो है अच्छा खासा जो है ना ध्यान किस पे देना है, सोशल नेटवर्क साइट पे देना है, जो आजकल आप लोग यूज कर रहे हो, जिस लाइक इंस्टा, फेसबुक, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। रिस्पॉन्ड एंड इंटरैक्ट, आजकल देखें तो लोगों ने तो व्हाट्सएप पे भी सेलिंग स्टार्ट कर दी है, वो स्टेटस दे देते हैं उन चीजों के, मतलब एज अ मिडिल मैन वो काम करते हैं, लेकिन क्या है कि वो एक काइंड, इट्स आल्सो काइंड ऑफ बिजनेस। रिस्पॉन्ड एंड इंटरैक्ट, लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग,
रिस्पॉन्ड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स। आपको दोनों को ही आज जो है ना रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो लोग नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं या पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव वालों को भी आपको सेटिस्फाई करना है। बी रिस्पेक्ट एंड डिस्प्ले अ हेल्पफुल फ्रेंडली डेमोनियर। ठीक है, आपको क्या करना है, डेमोनियर रहना है, डिस्प्ले जो करना है आपको क्या करना है, हेल्पफुल करना है, फ्रेंडली करना है, ताकि जो है आप लोगों के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट रखो, पॉजिटिव रखो, फ्रेंडली रखो। ऑलवेज क्विकली ऑफर ए सोल्यूशन एनी प्रॉब्लम। आपको जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम हो सॉरी उनको क्या रखना है, सॉरी, ऑलवेज क्विकली ऑफर अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जो भी आपके प्रॉब्लम आपके कस्टमर्स फेस कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस आपके पास हो, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आप लोगों के पास हो, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप उनको रिप्लाई कर सके, उनको उनके इश्यूज सॉल्व कर सके। वाई रिस्पॉन्ड एंड इंटरेक्ट, बिल्ड रिलेशनशिप। हम क्यों रिस्पॉन्ड और इंटरेक्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए। अलाउ यू एक्टिवली मैनेज एंड कंट्रोल योर ब्रांड्स। ठीक है, उसमें क्या है कि आप एक्टिवली मैनेज और कंट्रोल कर रहे हो किसको, अपनी ब्रांड को। शो दैट यू केयर, आप उनको दिखाओ, आप उनको शो करो कि आपको उस चीज की केयर है, उस चीज की परवाह है। अलाउ अदर पीपल टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप अलाउ करो दूसरे लोगों को कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज देखें। How to improve your reputation. Already have some negative online comments and reviews. Make a brand, optimize your main focus. ठीक है, उसके बाद use SEOs to drive down the negativity. उसके बाद create a submit press releases, article and videos. Create a blog and submit fresh, unique and content regularly. Engage in social media. Build a loyal following. ये सारी चीजें। इसका माइक ओपन है। हाउ टू इम्प्रूव योर रेपुटेशन। अच्छा ये हो गया, नहीं। आस्क नेगेटिव रिव्यूज टू बी रिमूव। ठीक है, उसके बाद डोंट इग्नोर योर अनहैप्पी कस्टमर, प्रोमोटली एड्रेस इश्यूज। उनके इश्यूज को क्या है आपको एड्रेस करना है, रिजॉल्व करने हैं। नाउ व्हेन यू वॉक अवे डोंट आर्ग्यू विद कस्टमर, कांट प्लीज एवरीवन। ठीक है, क्योंकि हम प्लीज सबको नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को आर्ग्यू नहीं करेंगे, उनके साथ बहस नहीं करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव योर रेपुटेशन। अच्छा ये हो गया। इंटरमीडिएट्स मॉडल। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट आ जाते हैं। वन ग्रेट होप फॉर द इंटरनेट टू द सर्व एज अ मीडियम फॉर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक इंटरनेट जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, सर्व कर रहे हैं किसको, एक मीडियम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ऑफ गुड्स को एंड सर्विसेज को। बट देयर इज स्टिल वे टू गो। Content that can be digitized can be transmitted over the internet. For example, the New York Times digitally distribute an online version of its newspaper. ठीक है, वो क्या है कि डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है और ऑनलाइन वर्जन ऑफ इट्स न्यूज़पेपर, so उसमें आ जाता है। Thousands of radio station broadcast live programming software has along the history of online distribution. बहुत सारे रेडियोस जो ब्रॉडकास्ट लाइव प्रोग्रामिंग, इवन रेडियो की तो ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर हैं जो उसकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को सेव रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली लोअर फॉर, इसको यहाँ से देखिए कुछ मिसिंग है इसकी, लोअर फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट कंपेयर्ड विद द फिजिकल। ठीक है, उसके क्या है कि वो उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली लोअर फॉर डिजिटल प्रोडक्ट, वो कंपेयर किए जाते हैं किसके साथ, फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ। अब आ जाते हैं द इकोनॉमीज। ठीक है, द इकोनॉमीज में, ओल्ड इकोनॉमीज में हम क्या करते थे, 4 पीस थी हमारी, कौन कौन सी, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। अब न्यू इकोनॉमी में क्या है, हमारे 4 सीज हैं। वो कौन कौन से हैं, अब जाहिर की बात डिजिटल में तो 4 सीज ही आएंगे। कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस,
और कम्युनिकेशन ये आ जाती है। ये सारी MIS, IT, IAS, ICT, इंटरनेट डेटा माइनिंग, ये CRM, ये इस चीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी इज 4 R's, ठीक है। 4 R's स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, रिट्रेंचमेंट, रेलेवेंसी एंड रिवार्ड, ठीक है। अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है इकोनॉमिक्स के बेस पे। अब देख इकोनॉमी की बेस पे, अब देखिए ओल्ड इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी एंड पोस्ट इकोनॉमी, ठीक है। ओल्ड इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरनेट पे है। और अब हमारे पास अब के दौर में क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, जो हमारे लिए किस चीज का काम करती है, नॉलेज का काम करती है। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, पहले मार्केट शेयर्स होती थी, अब टाइम टू मार्केट साइट विजिटेशन है। अब हमारे पास क्या है, वॉलेट शेयर प्रॉफिट है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम क्या है कि हम में क्या है, चेंज आ रही है, एवोल्यूशन आती जाती है। फोकस किस चीज पे होता था ओल्ड इकोनॉमी में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इफिशिएंसी, ठीक है। न्यू इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, जाहिर की बात है अगर इंटरनेट आई है तो आपकी टेक्नोलॉजी पे कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, किस तरीके से जो है ना आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो। फिर रिटेनिंग कस्टमर विन सर्विसेज से, उस पर फिर ये चीज आ जाती है। अब है न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, अप स्केलिंग टू इनेबल डिजिटल वर्कफोर्स, एनहांस द इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ एम्बैरेसिंग डिजिटल स्किल्स, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है और ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग प्रोसेस जो है डिजिटल मार्केट का, आपको उनको डिजिटल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए अपने वर्कर्स को, अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवानी है। अलाइंस वर्कफोर्स स्किल्स डेवलपमेंट विद द इंडस्ट्रीज नीड, आपको वर्कफोर्स की स्किल्स डेवलपमेंट करने हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज की नीड है, जिस टेक्नोलॉजीज को आपको जरूरत है उसकी ट्रेनिंग आपको उन वर्कर्स को उस तरह की ट्रेनिंग आपको देनी ही है। उसके बाद है डेवलपमेंट एबिलिटी टू वर्क अलोंग साइड, ठीक है। ऑटोमेशन एंड क्लाउड इनेबल सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से ये सारी आ जाती हैं डिजिटल ट्रेनिंग मैनेजमेंट में। उसके बाद है रेगुलर साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड, ये चीज भी बहुत जरूरी है जिसमें आप डेवलप करोगे, डेवलपिंग अ ग्लोबल रेलेवेंट सब्सटेंस ICTI पॉलिसी, data routes, building confidence as a set, expectation of data celebrity and privacy। जाहिर की बात है जितनी आप प्राइवेसी की ख्याल करोगे तो आपको भी फायदा होगा इससे, कंपनी को सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, आपको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। शिफ्ट इन पोजिशनिंग टावर्ड a digital services economy, position as a digital nation, leverages local ICT infrastructure and talent, enable digital government, cloud servicing, innovation cluster, digital services hub, promoting investment, development and new digital business। ये सारी चीजें आपकी न्यू जो है डेवलपमेंट डिजिटल बिजनेस को क्या करती हैं, प्रोमोट करती हैं, या ऐसा कहें कि आगे बढ़ाती हैं। radically different approach toward attracting new investor, BPO digital firms, ठीक है। ट्रांसलेशन to a knowledge-based value proposition from a low-cost delivery model. Position offering toward the technology enables to the digital service provider realign initiative